Assalamu alaikum everyone. Welcome to our very first podcast of Pharmacy Mentor Pakistan. We are truly very excited to be a part of this opportunity. This is Areej from Pharmacy 4th semester, currently a student of Salim Habib University. And I have with me my very good friend and co-host Anoosha Ahmed. Ji Anoosha. Assalamu alaikum everybody. So everybody listening and watching us will get the insights into career guidance for pharmacy students and learn about the teaching experience from a person who is both a teacher and a student. क्योंकि teachers भी कभी students थे. Exactly. And now I'm very pleased to introduce our very first guest of this podcast, a very charismatic personality. She has been teaching in our university for almost an year now, and very excited to introduce Dr. Sumbal. Thank you so much for having me. In fact, thank you again for this thing, that knowing that how controversial I could be at times, you still took up a bold step of selecting me as your first guest. So that's very daring, I must say. Thank you. First question will be done by... So सबसे पहले तो हमें बताएं कि pharmacy क्यों choose किया? Was it always your first choice, and how did you develop interest into pharmacy? Assuming that you are also a student, Yeah. was a pharmacy your first choice? Actually, yes. Honestly, Oh my yeah, God. that's a very surprising answer, by the way. But see, what happens is that we all, almost the students here in pharmacy, we hail from a very typical and a very conventional background. और वही होता है कि अब क्योंकि आपने प्री मेडिकल ले लिया है तो आप पर लाजिम है कि आप MBBS करें, बिकॉज एल्स देन दैट वट एवर यू गेट बियॉन्ड दैट और बिसाइड्स दैट इट्स नेवर एक्सेप्टेबल फॉर यू. तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस, मैं तो बहुत डिसऑनेस्टी के साथ आपको कह सकती हूँ येस इट वॉज, बट इट वॉज नॉट, इट डेफिनेटली वॉज नॉट. मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे किसी भी तरह अगर रहना है तो मेडिकल से रिलेटेड रहना है, और मुझे रहना है तो मुझे प्रैक्टिस में रहना है, एंड नीड अ डिग्री अपॉन विच फॉर विच आई कैन प्रैक्टिस. तो बस यही वाला इंटेंशन था, एंड आई अज्यूम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू फार्मेसी हैव दिस इंटेंशन. ये वाला केस बहुत रेयर होता है, जबकि ये रिक्वायर्ड है. Different story. Yeah, but you must be having certain inspirations. Yeah. But coming from a background whereby nobody else except you have ever chosen pre-medical, so you don't have that sort of guidance available. I can relate with that too. Should I move on with the Yeah, second yeah, sure. question? Okay. How did you broaden your horizons, and what are some other options related to, after pharmacy? We can pursue that. See, first thing, it's still within pharmacy you have 5 disciplines to pursue. It's not like if you are doing this degree, you'll restrict yourself only to industry, you'll restrict yourself only to clinical or only to academia. You have your options available. So you already have a broader horizon. But except for that, degree अगर आप यूँ भी समझे तो एक हुनर है, और वो अगर आपके हाथ में मौजूद है, you have that first card, first entry card in many other fields. You can go for a management. आप मैनेजमेंट अपग्रेडेशन कर सकते हैं. लोग, बहुत सारे लोग MBA करते हैं कि उन्हें इंडस्ट्री में अपने लिए कोई पोजीशन बिल्ड करनी है. सो दैट्स वन अ फेयर ऑप्शन टू गो विद, बिकॉज आप यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़ते. बट इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली विद इन इंडस्ट्री इन कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, तो फिर ठीक है, यू कैन गो विद मैनेजमेंट. Except for that, there are multiple other things. You can, like for example, would opt for any examination for a public sector. जब आप ऐसी किसी एग्जामिनेशन का पार्ट बन जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अ CSS एस्पिरेंट, यू ऑलवेज हैव एवरीथिंग ऑन योर टिप्स. आप इकोनॉमी भी अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, बट दैट अगेन इज़ सोनली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. आप ये सब चीज़ें वॉलंटरली करते हैं, आपके पास एक बेसिक फाउंडेशन आ जाती है. अपॉन दैट यू कैन बिल्ड अ बिल्डिंग or just a house or a skyscraper. That's totally up to you. लेकिन अगर आपके पास ये इंटेंशन है कि नहीं, you want to study, you have that learning attitude within you, तो फिर you have multiple options available. Like I said, go for MBA degree, go for MPhil degree, be in college, be in SUTEX, be in anything that you want. And also you yourself within this degree have 5 main domains to work in. तो आप एक broaden horizon से मज़ीद broad भी हो सकते हैं. There are always options available. So after pharmacy, did you yourself consider going into the industry or for further education? See, if people will tell you this thing कि आपको आपका मुकद्दर पता होना चाहिए, you should know your fate. That's not the realistic story. That can never be. आप सोचिए, एक जगह पर जाने के बाद आपको वो रोड मैप क्लियर ही कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है ना. You can not foresee, you cannot see ahead of things.
इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन रीड बिटवीन द लाइन्स. आपको तो कई एक दफ़ा बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होती. Until or unless you expose yourself to that environment, then you learn whether or not you can acclimate with that environment. Yeah, that's true. आप कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकते. इफ़ आई एम बिल्ड फॉर इंडस्ट्री, इफ़ आई एम बिल्ड फॉर क्लिनिकल, अगर आपने उस जगह उस ज़मीन पर कदम रख के नहीं देखा, relying on someone's experience and imagining कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, it's very very detrimental for your own grooming, for your own growth. लिहाजा nobody knows, at least I believe nobody, बहुत क्लियरली किसी को नहीं पता होता कि मैंने इंडस्ट्री जाना, मैंने क्लिनिकल में जाना. What happens is whatever opportunity you strike at first, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री, क्लिनिकल है तो क्लिनिकल, अब वहाँ जाते हैं 3 महीने खुद को भी समझते हैं, एनवायरनमेंट को भी समझते हैं. Same was in my case. I had my opportunity in industry, first opportunity in industry. Then I had this option to switch between industry and clinical, but then I remained with industry given that I was very comfortable there. मगर फिर थोड़ा अरसा गुजरा और अंदाज़ा हुआ कि this is causing a pure sort of self-alienation in me. The monotony was rusting me from within and I'm not built for this environment. और मुझे लगता है अगर मैं ये किसी और के प्रिज्म, किसी और के नज़रिए से देखती, आई वुड नेवर हैव एक्सपीरियंस्ड इट अंटिल आई एक्सप्लोर्ड इट माई सेल्फ दैट आई एम नॉट बिल्ड फॉर दैट एनवायरनमेंट, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट एनवायरनमेंट. एनीथिंग एल्स? तो यू आंसर्ड वेरी नाइसली. मुझे जो बात समझ आई कि यू आर सेइंग कि वी लर्न ओवर द कोर्स ऑफ 5 years, राइट? और उसके बाद मोर देन दैट, इवन मोर देन दैट. कुछ लोगों को करने के बाद भी नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या ये बड़ा क्लासिकल केस है ना. अच्छा, तो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि इफ़ यू कुड डू इट ऑल ओवर अगेन, और या अगर आपके कोई रिग्रेट्स हैं, वैसे तो रिग्रेट्स कहते हैं कि रखने नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव वन, बट इफ़ यू हैव तो आप व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मुझे जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉडन योर होराइजन्स, व्हेन यू रीड समथिंग एंड दैट स्ट्राइक्स यू राइट, मतलब आपको ऐसे फर्स्ट क्लिक में चीज़ समझ आती कि यू नो यू कुड हैव बीन दिस, यू कुड हैव बीन देयर. सो इन माय केस आई वुड हैव प्रेफर्ड अ डिग्री ऑफ लॉ, and that's a very non-conventional part to read on, but that's something that I prefer. कि अगर मैं ये नहीं करती तो probably I would have been a lawyer, and that really fascinates me. वो जो होता है ना build-up of argument, cross-examinations and things like that, but वो यहाँ पर इतना charming profession नहीं है, but that does not mean कि वो profession बहुत अच्छा नहीं है. So I would have switched my profession, but that has nothing to do with any regrets or any struggles that I'm doing or I'm facing within this journey of being a pharmacist. उसका रिलेशन पे वो मेरी अपनी स्किल्स, मेरी अपनी सेट ऑफ स्किल्स के साथ है. इट्स नथिंग टू डू विद द चैलेंजेस ऑफ दिस फील्ड, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड एंड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल विद दिस. मैम आजकल क्या, जब जैसे ही हम क्या नाम है फर्स्ट ईयर में आते हैं, व्हेन वी गेट टू टॉक टू आवर यू नो स्टूडेंट्स, आवर फ्रेंड्स, तो पता ये चलता है कि भाई स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न एंड दे आर डीमोटिवेटेड आफ्टर कमिंग इनटू द फील्ड, ठीक है ना. एंड यूजुअली वही बात जो आपने की कि सेकंड चॉइस होती है स्टूडेंट्स की फार्मेसी. तो व्हाट फ्यूचर डू यू सी एज ऑफ फार्मासिस्ट इन नेक्स्ट 10 years या इन नेक्स्ट 5 years? वेयर डू यू सी देम? अच्छा, पहली बात तो ये फर्स्ट ईयर इज़ क्वाइट नहीं, डेफिनेटली वेरी वेरी अर्ली टू बी डीमोटिवेटेड, कि अभी आपने कुछ देखा ही नहीं और उसके बावजूद आप डीमोटिवेटेड, तो दैट मीन्स इशू फील्ड से ज़्यादा एटीट्यूड का. सही. And seeing pharmacy in 10 years, see, there is no absolutely correct or wrong answer to this question, because they cannot be. यहाँ पर अभी हम बैठे हुए भी गूगल सर्च रन करें ना, then we can have thousands of research results. Half of them will prove you कि कोई future नहीं है. The other half would prove you कि आपके बगैर दुनिया नहीं है. So the point is that you always have to find a midway between the two extremes. या अगर आप ये सोच लें कि कुछ भी नहीं है, then you definitely would displace yourself from this profession and would end up at a certain other place. और ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, सेकेंड ईयर के बाद वो नहीं कंटिन्यू करते. ना तो क्वेश्चन विच इट ब्रिंग्स अस टू कि हमारे पास मिडवे किधर है. आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना और आपको फॉल्स ऑप्टिमिज्म में भी नहीं जाना. आपने बेहद गरूर भी नहीं करना और ज़रूरत से ज़्यादा नकारा भी नहीं समझना खुद को. सो फॉर मी, and I'll only speak about myself because not on behalf of a representative population, लोगों के लिए narrative different हो सकता है and you're definitely entitled to have a contrary opinion to mine. मेरे लिहाज से midway lies in your own skills and ability. देखिए, opportunity still exist in market. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान भी उसी पेस से अपग्रेड हो रहा है? नहीं, वी स्टिल प्रेफर गोइंग द मैनुअल वे. लिहाजा there are opportunities in market, but then again your ability to recognize that opportunity, to exploit that and to gain certain monetary benefit over it
ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सलाहियत पर ही होंगी. सो विद इन 10 ईयर्स और विद इन 20 ईयर्स अगर वो स्किल आपके पास अगले 30 सालों में भी नहीं है तो कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर वो स्किल आपके पास पहले 5 सालों में तो अगले 8 सालों में आपका फ्यूचर है. सो फॉर मी मिडवे इज़ यू. सो जो हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी एडवाइस लेना चाहेंगे हम रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स स्टडीज़ और हाउ कैन दे एक्सेल. I think throughout this conversation, I have been waiting for this question. Oh my God. It's not about I found this place as a place to vent out my grievances. It's not like that. मेरा अभी तक टीचिंग का बहुत छोटा सा तजर्बा, एक बड़ा अर्ली नेसेंट सा एक्सपीरियंस है, बट विद इन दैट एक्सपीरियंस समथिंग दैट आई हैव लर्न, समथिंग दैट आई हैव रियलाइज नॉट ओनली अबाउट फार्मेसी बट ओवरऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इज दैट डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड with the intervention of technology is enormous. आप आज से 6 साल पहले वाला स्टूडेंट, आप आज से 6 साल बाद वाला स्टूडेंट उठा के देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. रीज़न ये कि अब ना हम एक जम में रहते हैं. जम का मतलब समझते हैं आप लोग? दैट फेक बबल अराउंड अस, दैट वी नो एवरीथिंग एंड विच इज़ नॉट करेक्ट. एवरी इंफॉर्मेशन जस्ट अ गूगल सर्च अवे डज नॉट मीन कि आपका PhD हो गया उसमें. Reading a research paper and writing a research paper are two very difficult things to do and very different things to do. लिहाजा पढ़कर ये समझ लेना कि आपका इल्म मुकम्मल और कामिल हो गया और वो इंस्ट्रक्टर he or she present in class is just reiterating things is the attitude issue presently present within the students of pharmacy. और ये बड़ा जेन्युइन किस्म का इशू है जिसे हम एड्रेस नहीं करते और ना ही इस बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज द रीज़न कि वहाँ पर स्टूडेंट ऑफेंड होता है और यहाँ पे टीचर एम्बैरस होता है. सो वी डू नॉट ब्रिंग अप दैट टॉपिक इन कन्वर्सेशन वेयर बाय आई ऑल्सो हेजिटेट टू सर्टन एक्सटेंट. मैं भी ये वाली बात नहीं करती हूँ, वाई शुड आई लाई अबाउट इट. तो मगर करनी चाहिए, बिकॉज अनटिल और अनलेस वी बर्स्ट दैट बबल फॉर देम दे विल नॉट रियलाइज़ कि वो कहाँ खड़े. जब तक आप ये समझते रहेंगे कि आपका घड़ा ही समंदर है तो आप समंदर पे रीच आउट नहीं करेंगे. जो चीज़ें आपको गूगल बताता है वो प्योरली डाटा है. ठीक, डाटा को जब आप इंटरप्रेट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और जब उसी चीज़ को एक क्लासरूम में एक इंस्ट्रक्टर स्टोरी में कन्वर्ट करता है तो वो टीचिंग बन जाती है. सही. इन विच ऑफ द 3 ways डू यू थिंक इज़ द ईजियर वन टू गो विद, इज़ द अंडरस्टैंडेबल वन टू गो विद? जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं ना, फिर आपको क्लासरूम में प्रेजेंस, बोथ मेंटल एंड फिजिकल प्रेजेंस का एहसास भी होता है, एहतराम भी होता है. क्लियर? एंड वंस यू बिल्ड अप दैट व्हाट यू एक्चुअली एंड अप हैविंग इज़ अ लर्निंग एटीट्यूड. आप ज़िंदगी में लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं. फिर वो आप अपनी जॉब की किसी प्रोफेशन पर हो, फिर आप चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे क्लिनिकल में हो, हार्डली 2 महीने भी आपको नहीं लगेंगे टू एक्सेल एट वेरियस थिंग्स बिकॉज यू वर एंड यू हैव बीन देयर टू लर्न. लिहाजा एटीट्यूड बदलने की बेहद ज़रूरत है. अच्छा, छोटा सा मेरे बीच में क्वेश्चन ये है कि मैम एक जनरेशन गैप होता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, राइट? तो वो अंडरस्टैंडिंग पे, बिकॉज साइकोलॉजी भी ये कहती है कि भाई आफ्टर 40 आपकी क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती रहती है. तो लिविंग इन दिस एज, दिस टाइम, दीज टाइम्स, ये होता है कि हम लोग किसी और पर्सपेक्टिव से, किसी और तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन वो इतना मोल्डेबल नहीं होता टीचर्स का एटीट्यूड या उनकी थॉट प्रोसेस उनका. दे आर नॉट केटरिंग समथिंग व्हिच यू आर कमिंग अप विद. तो वो बीच में एक ना कनेक्शन डेवलप नहीं होता. सही. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई हम भी सही हो सकते हैं. Nobody would ever deny that. आप डेफिनेटली सही हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है टू सपोर्ट योर फैक्ट, टू सपोर्ट योर स्टांस, तब तक माना नहीं जा सकता कि आप सही हैं. कभी कभार हमें से सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर आता है कि यार आप बदतमीज़ हैं. ऑल्सो मैम ये पूछ रहे थे कि आपको लगता है कि आजकल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से? दिस अगेन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने जहाँ पर कहा कि एटीट्यूड का इशू है, तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के एंड से, इस एंड से भी हो सकता है. कमिंग फ्रॉम द रोस्ट्रम वो एटीट्यूड उस एंड से भी लैकिंग हो सकता है. बट टेलिंग यू वन थिंग ऑल्सो, देखिए यहाँ पर एमफिल या एकेडेमिया को परस्यू बहुत कम लोग करते हैं. कंसिडरिंग द चार्म ऑफ इंडस्ट्री, देर आर वेरी रेयरली पीपल फ्रॉम योर ओन क्लासरूम्स जो आप बाद में एमफिल करेंगे. नहीं करते लोग. दे ऑप्ट फॉर जॉब, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उन्हें ज़िंदगी में, तो वो इंस्टेंट जॉब की तरफ जाते हैं. दे डू नॉट गो फॉर अ हार्डर पाथ, दे डू नॉट वांट टू लर्न एट द हार्डर वे.
लिहाजा दैट इंटायर कोहॉर्ट ऑफ टीचर्स दैट यू हैव इन फार्मेसी वो बहुत लिमिटेड है, और यकीन करें वो यंग ही हैं, दे आर नॉट ओल्ड इनफ टू हैव अ जनरेशनल गैप. होता ये हम अपनी हेजिटेशन को गैप में कन्वर्ट कर देते हैं. हेजिटेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, लाइक आई टोल्ड यू दैट वी हेजिटेट टू ब्रिंग अप अ टॉपिक, यू हेजिटेट टू डिस्कस अपॉन दैट टॉपिक. तो होता ये हम उस गैप को जनरेशनल गैप समझने लगते हैं, और वो लाइन ब्लर करने की बहुत बहुत ज़रूरत है फ्रॉम बोथ एंड्स. एंड ये होती ही तब है, लाइक आई टोल्ड यू, दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट अ टीचर एंड अ स्टूडेंट हैव, ये सिर्फ दो चीज़ों, दो पिलर्स पे बिल्ड होता है. टीचर की तरफ से एहसास और आपकी तरफ से एहतराम. और अगर ये दो पिलर्स बरकरार हैं, यू कैन मर्ज देम टुगेदर. तो उस लाइन को इतना ही ब्लर करें कि टीचर और स्टूडेंट के बीच की रिस्पेक्ट भी ख़त्म ना हो और जनरेशन गैप भी ना रहे. जी, इन कंक्लूजन उस लाइन को इस हद तक करीब लेकर आना, एक दूसरे में मर्ज इस तरह से करना दैट रिस्पेक्ट भी बरकरार है, एहसास भी बरकरार है, और आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग चलता है. लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क के इंटर्नशिप्स कितनी ज़रूरी है और कब से अप्लाई कर देना स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली लाइक फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स? जब से इतना इल्म आ जाए तो कर लें इंटर्नशिप. देखिए, इफ़ यू एज्यूम कि आप फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल राउंड पे चले जाएंगे, यू कैन नॉट गो जब तक आपने कॉलेज ही नहीं पढ़ी है. इफ़ यू एज्यूम कि आप फोर्थ ईयर से पहले इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, नहीं कर सकते, आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी नहीं पढ़ी. इफ़ यू ऑल्सो एज्यूम कि फिफ्थ ईयर से पहले आपको क्लिनिकल बहुत अच्छी समझ आ सकती है, यू कैन एक्सपोज योर सेल्फ टू दैट इन्वायरमेंट, बट कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इंस्टेंटली. सही, देयर आर टू थिंग्स. जब आप किसी भी जॉब इन्वायरमेंट में होते हैं, बी दैट हॉस्पिटल, क्लिनिकल सेटअप और इंडस्ट्री, आपके पास हर जॉब के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक आपका नॉलेज, एक आपकी स्किल्स. नॉलेज ऑल्सो कम्स अंडर योर स्किल, मगर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है. स्किल का मतलब ये है आप इन्वायरमेंट से इतने एक्सपोज हो कि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, वो आपको वहाँ रह के पता चलेंगे. नॉलेज आपको प्योरली इस जगह से सप्लाई होगा, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. नॉलेज और स्किल जब मैच करती हैं तब आप एक्सेल करते हो. सही, तो जब आप इंटर्नशिप कर भी लो तो आप तो स्किल डेवलप कर रहे हो, नॉलेज कहाँ से डेवलप करोगे? समझ आ रही है? इन लैकिंग इन एनी वन ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स बिकम्स समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू. और जब चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती ना उस सेटअप के अंदर, तब आप में एक चीज़ बिल्ड होती है विच यू कॉल एज एंजाइटी या फिर डिसअपॉइंटमेंट, कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, एंड वाई इज़ दैट हैपनिंग टू अस, या हमसे ज़्यादा लोगों को क्यों आता है. बिकॉज वहाँ पर एक चीज़ लैक करी थी, नॉलेज, जो यहाँ से जाना है आपके पास. येस, यू कैन डू इंटर्नशिप्स, आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर लें, बिकॉज थर्ड ईयर इज़ दी मिड वे, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल भी जाती है. एंड आई डोंट डिस्करेज दोज हु डू इंटर्नशिप्स, दे शुड डू इट. इफ यू वांट टू डू, इफ यू कैन मैनेज, गो फॉर इट. इफ यू कैन नॉट, आई डोंट थिंक सो इट्स एज एसेंशियल एज वी प्रिज्यूम इट. That's very different because we have usually heard कि भाई internships are very important. वो एक तरह का experience काम करता है when you apply for a job. तो I don't know. Okay, if you assume it, whenever, let's just say we are in a interview setting, मेरे सामने आपकी CV से पहले आपकी शक्ल है ऐसे ही है, और आपकी शक्ल से भी पहले आपका ऑरा एंड योर वाइब है, ऐसे ही है. So if you wearing your confidence on your sleeves with zero internships, trust me, I can hide you. Fake it till you make it. Yeah, you have to. You have to. वो कहते हैं dress it to win it. तो बस if you are confident enough, and I haven't touched your CV, पहले तो मैं आपसे बात करूँगी ना, ठीक है, your CV shortlist you for certain things, and you can be lucky enough to land up at a very very nice position, at a very lucrative position. But what if you are not capable enough to communicate? फिर But you're not capable enough to answer their technical questions. फिर अगर knowledge base की कमी आ गई तो क्या करेंगे? सही. So one thing, you do get opportunities. आपकी internship आपकी CV को hireable बनाती है. CV को, आपका knowledge आपको hireable बनाता है. अच्छा, नॉलेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एंड वो ये है कि मैम, मैंने ये देखा है इन पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे पास बुक्स पढ़ने का, वी डोंट सी स्टूडेंट्स इनटू बुक्स. अगर पढ़ते भी हैं तो दे आर लाइक यूजुअली फिक्शन एंड रोमांस नॉवेल्स, लवी डवी टाइप के, दे एक्ट एज अ पैलेट क्लिंजर, बट दे आर नॉट कैरेक्टर डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट. और डेवलप कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि हर भाई, अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो तो यू हैव अ बुक इन योर हैंड. सही है. तो देयर इज़ दिस पूरा कल्चर है बुक्स का. What books would you recommend, या आपने जो अपने टाइम पे पढ़ी हो एज ए स्टूडेंट, जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में या क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प कर सकें? अच्छा,
first thing first, ये reading issue has nothing to do with developing or developed nations. I think it exists equally between the two. Developed nations में भी there is after certain age you develop this habit कि इसके बाद जिनको आपने ट्रेन्स में बुक पकड़े हुए देखा होगा उनसे कोई बात नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पर ये हैबिट ज़्यादा है टू हैव टैबलेट्स, वहाँ पे ज़्यादा हैबिट है टू बी इन योर सेल फोन्स, टू बी बिजी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास एक्सेसिबल है ये चीज़. गेटिंग माई पॉइंट. तो ऐसा नहीं है कि ये कल्चरल डिफरेंस आपके पास डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड होने की वजह से, ये कल्चरल डिफरेंस आपका अगेन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ की वजह से. इट इज़ अबाउट व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट मेक्स यू फील पैशनेट अबाउट योर लाइफ. ये डिफरेंस सिर्फ उस कल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट वी आर हैविंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगेन आई वुड नॉट डिस्करेज कि जो लोग ये रोमांटिक फिक्शंस भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू सी it's not about cleansing something, it's only about developing a habit of reading. कहते हैं any book can teach you the lesson of mannerism, only experience will educate you. Which means कि आप पढ़ लें atomic habits, दिल कर रहा है पढ़ लें power of subconscious mind, but you cannot develop it overnight. Until unless you are in field, you have been through those experiences, through those incidences, through those accidents, आप नहीं सीख सकेंगे. So even if you're reading anything, given anything, you can go with it, you can start with it. होता फिर ये है कि फिर आप अभी, like you told me this thing that you are reading this type of genre, later with time आपका genre define और refine होता जाएगा, लेकिन आपकी habit वहीं पे बरकरार रहेगी. So initially if you are into any sort of books, go with that, I do not discourage it. Over the time आपको realize होगा कि यार ये मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे excite भी नहीं करता. You will go with science fictions, you will go with some novels about criminology. कुछ वो चीज़ एक्साइट करने लगी. अच्छा, बुक्स कौन सी रिकमेंड करें? आपने जो पढ़ी हो, मैं कर दूंगी, आप फिर मुझे जज करेंगे. नहीं, कोई नहीं बोले, हम लिखेंगे भी. आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होगी. माय पर्सनल चॉइस, समवन आई लाइक. अच्छा, बोथ लिटरेचर्स, गो फॉर उर्दू एज वेल एज इंग्लिश. तो उर्दू में तो आई वेरी फर्स्ट रिकमेंड यू टू गो फॉर बानो कुदसिया, जो कि एक डिफ़िकल्ट जर्नी है टू ऑप्ट फॉर. लिहाजा आप निम्रा अहमद से स्टार्ट करें, बानो कुदसिया तक आपको लिटरेचर खुद ही ले जाएगा. एंड इन इंग्लिश आई पर्सनली लाइक साइंस फिक्शन, तो मुझे डैन ब्राउन के नॉवेल्स बहुत एक्साइट करते हैं. डा विंची कोड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. एंजल्स एंड डेमन, आई मीन देयर इज़ एनीथिंग better than that I have read, have come across. मैं ये नहीं कह रही वो absolutely right है, मेरा बहुत limited सा experience कहता है कि that I like Dan Brown a lot. उसके बाद पोलो एंड अल्केमिस्ट के अलावा आपका जो दिल करता है उसमें से पढ़ लें. The one that I like of Polo is Devil and Miss Prime. That novel has actually have great insights about your own subconscious, about how you function, about how you make decisions, what is the level of sin and piscines that you have in your own personality. It helps you to explore your own self. So lihaza, you're developing a good habit, go with whatever you're reading, start with it, and you'll ultimately end up at these two writers. दो जो मैंने इंग्लिश में बताया और एक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है उर्दू में. Thank you, ma'am. बहुत मजा आया आपके साथ. I think this went very successful. And surely the audience learned from us a lot, and you only if they were listening enough. They will be. It's good, guys. You should listen. And on a concluding note, we should know this thing always कि देखिए, अगर आपकी मेहनत हाथी है ना, तो आपकी किस्मत अबाबील की कंकरी है. आपको नहीं पता कौन सी कंकरी से वो पूरा हाथी ढह जाए. You never know this thing. आपके सिर्फ इख्तियार के अंदर है मेहनत करना. इफ़ यू आर डूइंग अ डिग्री, इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन अ हेल्दी वे एंड प्रोग्रेस अपॉन इट. मगर ये सोच लेना कि यही हतमी वो है सक्सेस, तो ये भी मुमकिन नहीं है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर एब्सोल्यूट रियलिटीज़, यू विल ऑलवेज फेस डिसअपॉइंटमेंट. यू हैव टू अडेप्ट विद रियलिटीज़. मेहनत करें और तमीज़ के साथ करें, बाकी अल्लाह मालिक है. Very nice. Thank you so much. Thank you. Very good having you here with us.